8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Second exercise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Third exercise. 1, 2, 5, 6, 8, 7, 3. Fourth exercise. 1, 2. Flame of inspiration. This morning, I would like to invite Mehroz Fatima for thought of the day. Respected principal sir, teachers, and all my dear brother and sisters. A very good morning to all of you. Today my topic is thought. So my first thought is a negative mind will never give a positive life. मनफी जहन आपको कभी भी मस्बत ज़िंदगी नहीं देगा. Second, if you can change your mind, you can change your life. अगर आप अपना ख्याल बदल सकते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं. Thank you. Have a good day. Top of Mount Everest or to the top of your career, set by APJ Abdul Kalam. Next, I would invite Asia Asif on the stage for topic. Good morning to all of you, respected principal sir, teachers, and my dear brothers and sisters. Today, I, Asia Asif, present here to deliver a speech on the value of time. We all know that time is very important in our life. Time is the important, valuable thing in the universe. Time never waits for anyone. No one can stop or slow down the time. It keeps going whether someone likes or not. Time is not reversible. It means we have to use it sensibly. Every second or minute is moving forward and will not come back. And all things are born on time, grow on time, and die on time. We should not waste our time. We should use our time for good things. We should value and respect the importance of time. Thank you. Have a great day. Tanya Kazmi on the dais. Principal sir, teachers, and all my dear friends. A warm good morning to all of you. I am Sania Kazmi from class 8C. Today my topic is GK questions. I hope you give me the right answer. So my first question is, in which country white elephant is found? In which country white elephant is found? Right answer. The first woman judge of the High Court. I repeat my question. Who was the first woman judge of the High Court? Fatima Bibi is the right answer. So my third question is, which state in India first established Panchayati Raj system? I repeat my question. Which state in India first established Panchayati Raj system? Rajasthan is the right answer. Which country is also called as the land of rising sun? Right answer. Where in India is the National Chemical Laboratory located? I repeat my question. Where in India is the National Chemical Laboratory located? Pune is the right answer. Who was first president of Indian Republic? I repeat my question. Who was first president of the Indian Republic? Right answer. Who was the first Prime Minister of Free India? I repeat my question. Who was the first Prime Minister of Free India? Pandit Jawaharlal Nehru, the right answer. Thank you and have a nice day. Set by APJ Abdul Kalam. Now I would invite Alisha Nisar for news. Respected principal sir, teachers, and all my dear brothers and sisters. A very warm good morning to all of you. Today, I, Alisha Nisa from class 8, here on the deal to tell the news. LS polls, drug
Unaccounted cash liquor worth rupees 321 crore seized so far in Punjab. Thank you. Have a nice day. Good morning, Principal Sir, teachers, and all my dear friends. I am Sabah Gurjit from class 8th. Today I am going to present a moral story in English. The True Friends. Once there were two friends, a squirrel and a puppy. They used to live and play together. The squirrel was very sporty and always won the game. The puppy used to feel bad and thought that it was of no use. One day it started raining heavily. The squirrel was in high spirit. He started doing antics but suddenly lost his balance and fell in the rainwater. He called his friend the puppy for help. The puppy came to his rescue. The squirrel climbed on its back and reached a safe place. He thanked his friend for saving his life. The moral story of this always have confidence in yourself. Everyone is unique in his own way. Thank you. Have a wonderful day. From class 5C, so today my topic is riddles. I am an odd number. Take away a letter and I become even. What I am? I am an odd number. Take away a letter and become even. What I am? Correct answer. So my second riddle is I am full of holes. I can hold water. What I am? Right answer. So my third riddle is I was two hands and a face but no arms and legs. What I am? Right answer. So my fourth question is tall to short. I am tall when I am young and I am short when I am old. What I am? I repeat my riddle. Tall to short. I am tall when I am young and I am short when I am old. What I am? Wrong answer. The correct answer is candle. Thank you. Have a great day. And all my dear friends, a very beautiful good morning to all of you. My topic is song. ये जिस्म है तो क्या, ये रूह का लिबास है, ये दर्द है तो क्या, ये इश्क की तलाश है, फना किया मुझे ये चाहने की आस में, तरा तरा शिकस्त ही हुआ. Thank you. Have a great Principal and teacher. हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह. Thank you. Teachers, students and classmates present here, a very warm good morning to all of you. Next week हमारे स्कूल में इलेक्शंस होस्ट होने वाले हैं. आप सबको पता है, आपको अपना वोट देना है उसमें. उसके लिए अपना मैनिफेस्टो शेयर करने के लिए आज मैं स्टेज पर आया हूँ. अब नाम नहीं लेना चाहूँगा. कुछ लोगों ने प्रॉमिस करा है कि आपको इलेक्शन जीतने के 2 दिन बाद ही पिकनिक पे ले जाया जाएगा. यहाँ सारे टीचर खड़े हैं, आपको पता है वो कितना सच है. जबकि जैन सर ने डायरेक्ट हमें बोला है कि कोई भी झूठा मैनिफेस्टेशन नहीं करेगा और उसकी कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगी जो भी झूठ बोलेगा. मेरा इतना ही है कि क्लास में जिस क्लासेस में डस्टबिन नहीं है उन क्लासेस को सबसे पहले डस्टबिन प्रोवाइड करवाए जाएंगे. नेक्स्ट चीज़, जिन क्लासेस में डस्टर प्रेजेंट नहीं है उन क्लासेस में डस्टर प्रेजेंट करवाए जाएंगे. जिन क्लासेस में पंखे नहीं चलते हैं पंखों की रिपेयर, जिन क्लासेस के डेस्क ख़राब हैं वो ऑलरेडी स्कूल में बोल दिया गया है वो डेस्क ठीक कराने के लिए. उसके ऊपर एक कंप्लेन बॉक्स हम इंस्टॉल करवाएंगे जिसमें आप एनोनिमसली कंप्लेन कर सकते हो बिना अपना नाम लिखे, कोई भी आपका इशू हो स्कूल के अंदर. देन पढ़ाई और स्पोर्ट्स को मैं एक ही नज़र से देखता हूँ. स्पोर्ट्स प्रमोशन के लिए स्कूल में अगर जिन चीज़ों की प्रेजेंस नहीं है उन स्पोर्ट आइटम्स को ऐड किया जाएगा. अब कुछ बच्चों को लग रहा था कि हम हर बच्चे को अलग से स्पोर्ट्स की आइटम देंगे. नहीं, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि हम सबको स्कूल में अलग जर्सीज मिलेंगी. ये बात भी झूठ है. हर बच्चे को स्पेसिफिकली एक जर्सी नहीं दी जा सकती. इसलिए स्कूल में एक यूनाइटेड सामान आएगा जो आप सब लोग अपनी टर्न के टाइम पे यूज़ कर सकते हो. हफ्ते में मैक्स आपको विद परमिशन ऑफ प्रिंसिपल सर आपको गेम पीरियड मिलेगा. उस टाइम आप बैकग्राउंड जा सकते हो. अपने टीचर से परमिशन लेकर आप स्पोर्ट्स रूम से स्पोर्ट्स की आइटम्स ले सकते हो. टूर 6th से लेकर 10th तक में भी आपको मिलेगा साल में एक बार.
और पिकनिक शायद आपको मिलेगी, बट जिन्होंने भी बोल दिया है आपको कि जून जुलाई छुट्टियों से पहले पिकनिक आपको मिल जाएगी, वो नहीं होगा। प्रिंसिपल सर जैन सर ने मैं डायरेक्ट ऐसे बोला हुआ है। और वोट में यहाँ पे ये नहीं कहूँगा आपकी सिर्फ मेरे को ही वोट देना, जो आपको फ़ायदेमंद लगे, जिसको आपका लगे कि स्कूल में ज़्यादा डेवलपमेंट हो सकती है, उन लोगों को ही आपने वोट देना है। सब आके यहाँ पे स्पीच देंगे, जिसकी स्पीच आपको ठीक लगेगी आपने उसको वोट देना है। एंड स्कूल के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम सामान ले आएंगे, आप लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो सामान ज़्यादा देर तक संभाला रहे। ये ना हो कि आज कल यहाँ पे क्रिकेट की किट आए और 5 दिन में वो टूटी हुई हो। ये चीज़ जिम्मेदारी आपकी है। अब बहुत से बच्चे अनरियलिस्टिक चीज़ें मांग रहे हैं, जैसे हर क्लास में वापस पेंट मांग रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं हमें पर्दे लगा कर दो। वो उन क्लासेस को मिल सकता है जिनके वाइट बोर्ड्स के ऊपर रिफ्लेक्शन पड़ती है, सनलाइट पड़ने में डिस्टर्बेंस होती है। मैं आपको कोई भी झूठा वादा नहीं करूँगा, मैं सिर्फ एक आपका जरिया बन सकता हूँ जो प्रिंसिपल सर के सामने आपकी डिमांड रख सकता है। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि मैं आपको पक्का करके दूंगा, बल्कि मैं आपकी डिमांड्स प्रिंसिपल के आगे रख सकता हूँ और आपके लिए एक आवाज़ उठा सकता हूँ कि जो आपके साथ गलत हो रहा है या आपको जो चीज़ नीडेड है वो प्रोवाइड करवा सकता हूँ। कंप्लेन बॉक्स का यही फ़ायदा है कि आपको अपना नाम नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से बच्चे इस झिझक में कुछ बोल नहीं पाते हैं कि उनको नाम लिखना पड़ जाएगा और उनके साथ कुछ आगे भेदभाव हो सकता है स्कूल के अंदर। आप कंप्लेन कर सकते हो जिसमें आपको अपना नाम नहीं लिखना पड़ेगा, वहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा कंप्लेंट बॉक्स और एक रिक्वेस्ट बॉक्स हो जाएगा जिसके अंदर आपको अगर स्कूल में कोई चेंज चाहिए, अमेंडमेंट चाहिए, वो आप प्रिंसिपल सर को रिक्वेस्ट कर सकते हो, जो कि वीक के एंड पे खुलेगा और सिर्फ प्रिंसिपल सर पढ़ेंगे और कोई नहीं पढ़ेगा। थैंक यू। Respected sir, teachers, respected principal sir, teachers, dear brothers and sisters, a very warm good morning to all. Thanks for all giving me a chance for supporting Rose and Hers. Myself, Sadaf Jafri from class 10th B, standing in front of you as a supporter. I am standing here just because constants of a head girl Azia provided me a chance to stand here and deliver a speech. मैं एक रोज़ की सपोर्टर हूँ, कंस्टेंट नेमली आजिया जो क्लास 10th से है। वो हेड गर्ल की एक कंस्टेंट है जिसने इलेक्शंस के लिए जिसने पार्ट लिया है, उसको सपोर्ट कर रही हूँ उसकी डिसीजन में, क्योंकि मुझे लगता है कि वो उसके अंदर वो सारी कैपेबिलिटीज़ हैं जो एक हेड गर्ल में होनी चाहिए। मैं उसकी कैपेबिलिटीज़, उसकी क्वालिटीज़ से अच्छी तरीके से वाकिफ़ हूँ, क्योंकि मैं उसके साथ पिछले 9-10 साल से हूँ। वो एक मल्टी टैलेंटेड लड़की है, सपोर्टर है, कोऑपरेटिव है, ब्रिलियंट है, लिसनर है, वेल डिसिप्लिन्ड है और टीचरों की फेवरेट भी है अपनी एबिलिटीज़ से। वो कैपेबल है टीम वर्क करने के लिए, आपकी सारी जो नेसेसरी डिमांड्स हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए, मेंटेनेंस के लिए और सैनिटेशन फैसिलिटीज़ के लिए। मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा श्योर हूँ कि उसके पास इतनी कोरेज तो है कि वो आप सबकी डिमांड्स पूरी कर सके किसी पार्टिकुलर टीचर की सपोर्ट के बिना। यहाँ पे खड़े होकर हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि हम आपके साथ हमेशा होंगे, आपके बीच में होंगे जब भी आपको ज़रूरत होगी हमारी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी तरीके की कोई डिफ़िकल्टी है, तो आप बिना सोचे समझे हमसे शेयर कर सकते हो। इस चीज़ में आपको झिझकने की कोई भी ज़रूरत नहीं है कि सामने वाला हमारी बात को सुनेगा या नहीं। आपके सामने हम उस टाइम प्रोवाइड होंगे अगर आप स्कूल टाइम में हमें किसी भी वक्त बुलाएंगे तो। मुझे लगता है कि हमारे कंपेनियंस में से किसी ने भी फेक प्रॉमिस नहीं किए हैं, ऐसी प्रॉमिस नहीं की है कि जिन्हें हम पूरा ना कर सकें, क्योंकि जो हमें एनुअली बजट मिलेगा वो स्कूल की मेंटेनेंस के लिए मिलेगा, ना कि किसी की अनयूज़फुल डिमांड्स को फुलफ़िल करने के लिए। मुझे लगता है कि आजिया एक ऐसी लड़की है कि जो आपकी डिमांड्स को बिना किसी झिझक के सुन सकती है और उसके अंदर इतनी हिम्मत तो है कि वो आपकी डिमांड्स को सबके सामने ला सके। मुझे ये लगता है कि अगर आपके पास वोटिंग पावर है तो आप उसको यूज़ करो एक अच्छा डिसीजन लेने के लिए। हमें ये नहीं लगता कि हमें जीतना है या हमें हारना है, हमें सिर्फ इस चीज़ से मतलब है कि अगर आप किसी को जिताना चाहते हो तो उसको जिताओ कि जो आपकी सपोर्ट कर सके हर एक डिसीजन में। मैं आपको फोर्स नहीं कर रही हूँ कि आप किसी पार्टिकुलर इंसान को वोट करो, लड़कियों में से हेड गर्ल के लिए या हेड बॉय के लिए। बस इतना कहना है कि एक ऐसा डिसीजन लो कि जिसमें आपको बाद में रिग्रेट ना हो। हम ये चाहते हैं कि आप उस बंदे को वोट करो जो आपको लगता है कि आपकी बात सुनेगा, आपकी बात को सबके सामने लाएगा, पुट अप करने में उसको कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी, जिसके पास लीडरशिप की क्वालिटीज़ हों, वेल डिसिप्लिन्ड हो, स्कूल में मेंटेनेंस ला सके, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सके। अगर हम एज अ हेड गर्ल जीत चाहते हैं तो हम यहाँ पे एक कंपेन स्टार्ट करेंगे जो कि सैनिटेशन के लिए होगी, स्कूल की सराउंडिंग्स को क्लीन करने के लिए होगी। एट लास्ट
एज अ हेड बॉय मैं समीर को सपोर्ट करती हूँ, जिसका सिंपल रोज़ है, क्योंकि उस बंदे के अंदर सारी क्वालिटीज़ है कि जो एक हेड बॉय के अंदर होनी चाहिए। वो वेल डिसिप्लिन्ड है, वेल मैनर्ड है, क्वालिटीज़ ऑफ लीडरशिप हैं उसके पास। और मुझे नहीं लगता कि अगर आप हम में से किसी को वोट या सपोर्ट करोगे आपको कोई भी रिग्रेट होगा इस चीज़ के अंदर। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपके अंदर, हमारे अंदर इतनी हिम्मत तो है कि हम आपकी डिमांड्स को बिना किसी हेजिटेशन के सबके सामने ला सकें, हम आपको बिना किसी झिझक के सपोर्ट करेंगे, सिचुएशन कैसी भी हो। वो कैपेबल है इस चीज़ के लिए कि वो आपकी सपोर्ट कर सके बिना किसी हेजिटेशन के। उसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज़ है जो कि एक हेड बॉय या हेड गर्ल के लिए ज़रूरी है कि वो आपके सामने आ सके। मुझे लगता है कि आपके पास वोटिंग पावर है, इसको आप अच्छे से यूज़ करो, एक कैंडिडेट चूज़ करो जो आपको हर सिचुएशन में सपोर्ट कर सके, आपके लिए अवेलेबल हो, आपको आंसरेबल हो और उसके पास क्वालिटीज़ हो लीडरशिप की और कोरेज की। अपना डिसीजन अपनी मर्ज़ी से बनाए, किसी के अंडर प्रेशर आकर चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एक ऐसा कैंडिडेट चूज़ करो कि जो आपको हर सिचुएशन में हेल्प करे बिना किसी डर, बिना किसी झिझक के। अगर आप लोग इतने टाइम से सिविक्स पढ़ रहे हो, आपके पास वोटिंग पावर है, तो प्लीज़ उसका यूज़ करो। इस स्कूल में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करो, क्योंकि अगर आप एक इंस्टीट्यूट में कंडक्ट नहीं कर सकते तो इतनी बड़ी कंट्री में कंडक्ट करने की उम्मीद कैसे रखते हो। थैंक यू। एट लास्ट ये कहना चाहता है कि रोज़ के जैसे बनो के जो कांटों के बीच में खिलता है लेकिन फिर भी सबसे खूबसूरत फूल है। हैव अ गुड डे। How are you? Good. You know that there is an election campaign going on in your school campus. Do you know? Okay. One thing I would like to request all the contestant students, those students who are contesting elections. I know that you have become a politician. Actually में you are representing the students, and to represent the students you must be knowing political tactics. But this is just one humble request from my side and also from teacher's side. What I think that is good for you people, whenever you are going into the classes for campaign, I heard some terrible incidences from the class that students are making false promises with the students. Those students who are contesting the elections, like they are just using religion. This is my humble request to the students, please don't use this. ये किसी को कहना कि जी आपको नबी का वास्ता हमें वोट देना जी, और भाई ये लोकसभा पार्लियामेंट का इलेक्शन नहीं है, लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन नहीं है। समझे बात को? मैं स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आपको लगता है कि ये डिजर्व है, हमें ये डिलीवर कर सकता है, हमारी प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकता है, आप डिसाइड कीजिए। इस जो समझ गए बात को, आप सर जस्ट जज द क्वालिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, कि आपको क्या मिल सकता है और क्या नहीं मिल सकता है। ठीक है, यही मेरी आपसे गुजारिश थी। जो कंटेस्टेंट स्टूडेंट्स हैं, क्लास में जाके बच्चों को कम से कम रिलीजन के नाम पे भाई उनको कुछ मत कहें। ये मत कहें नहीं जी आपको इसका वास्ता, आपको उसका वास्ता। भाई ये टोटल अगर कोई ऐसा बच्चा करेगा, हिज कैंडिडेचर विल बी कैंसल्ड विदाउट एनी इंटीमेशन। उसको कोई इंटीमेशन नहीं दिया अगर कहीं से कोई भी कंप्लेंट आएगी। और दूसरा एक और चीज, मैं ये टीचर से भी कहूंगा कि वो भी इसमें न्यूट्रल रहें। वो क्लास में जाके बच्चों को ये भी ना कहें कि नहीं जी इसको वोट देना है उसको वोट देना है, क्योंकि ये भी एक कंप्लेंट है कहीं पे। तो इसलिए अकल के लिए, अकल वाले के लिए इशारा ही काफी होता है। तो हम इस बात से न्यूट्रल रहें तो वो हमारे लिए अच्छा रहेगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल।